پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر صدر مملکت نے آج مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے، تو آپ نے اس احتجاجی دھرنے کا اہتمام کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ موقع یہی تھا کہ ہم پی ڈی ایم جو ہے گورنمنٹ بضد ہے کہ وہ پی ڈی ایم لائے، اور میرے خیال میں پی ڈی ایم کا مطلب ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل، دوسری پی ڈی ایم نہیں، پی ڈی ایم ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخصی آزادی بھی چھیننے، بولنے کی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا فریڈم تو ویسے بھی چھین چکی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا، صدر مملکت جو ہے عارف علوی صاحب جو ہے وہ خود اس سے خطاب کر رہے تھے، یہ موقع صرف ان کو ریئلائز کرنا تھا۔ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، آپ نے دیکھا امیر صاحب کو آ کے وزٹ بھی انہوں نے کیا ہے، یکجہتی کا بیدار کیا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ادھر موجود ہیں ہمارے درمیان، ان کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یہ آپ ایک کالا قانون لا رہے ہیں جو میرے خیال میں ایک ایسا مارشل لا لگانے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے۔ بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، اس کو لائرز کی تنظیموں نے اور میڈیا کی تنظیموں نے میڈیا مارشل لا قرار دیا ہے، لیکن پاکستان میں تو جمہوریت ہے، تو کیا آپ لائرز کی تنظیموں اور میڈیا کی تنظیموں کی اس ٹرم سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ پاکستان میں میڈیا پر مارشل لا نافذ کرے گا؟ حامد میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں پورا جو صحافی کمیونٹی ہے آپ سب کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیا ہے، اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک یہ قانون ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، مگر یہ پہلا کالا قانون نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آمر آتا ہے، جب بھی کوئی سلیکٹر آتا ہے، تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ان کا یہی کوشش ہے، لیکن ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا، جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے، ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے، اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے، صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے، ہم نے وہ سارے پابندیوں کو، سارے کانے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے، اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے، یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے۔ آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے، یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے، اتنا بڑا فائنینشل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے، وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کے جیالے آپ کے شانے پشانے کھڑے رہیں گے۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پروپوز لا ہے، اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی، اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا، اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا، کیا بینگ
वेरी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर, कोई ड्राफ्ट आपके सामने आया अभी तक? जो ड्राफ्ट हमारे सामने आए हैं वो जो ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में कौम के पीछे निकाला गया वही ड्राफ्ट है। कोई हमारे साथ ऐसा कोई बातचीत नहीं किया गया है, ना ये कोशिश किया गया है कि हमारा एतराज़ात दूर करें, आपके एतराज़ात दूर करें। ऐसे लग रहा है कि वो बुलडोज करना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती ये कानून पास करवाना चाह रहे हैं। मगर अगर वो खजाना खास्ता होता है तो इंशाल्लाह ताला हमारा पीपल्स लेबर फॉर जो है ब्यूरो जो है और लतीफ़ खोसा साहब आपके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके इत्तला के मुताबिक आपके ख्याल में हुकूमत नेशनल असम्बली से इस बिल को पास करवा सकती है, लेकिन सेनेट में फिर क्या होगा? हमारा जो शक है वो ये है कि हमारा मेजॉरिटीज़ को साइड स्टेप करवाने के लिए वो जॉइंट सेशन से पास करवाना चाह रहे हैं। अगर ये जॉइंट सेशन नहीं तो वो दूसरा जॉइंट सेशन बुला के अपना ब्रूट फोर्स से कोई तफसीली डिबेट के बगैर दोनों हाउसेस से जो प्रोसेस है वो फॉलो किया बगैर पास कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमारा शक है, कोई सबूत अभी तक हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि आज प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करना है, तो अभी आप जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? हमारा पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमारे 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस सेशन में एहतजाज करेंगे। एक जो ये आज़ादी सहाफ़त पर, आज़ाद ख्याल पर हमले कर रहे हैं, और दूसरा जो वो हक़ रोज़गार पे डाका मार रहे हैं। इसलिए वो आपके हक़ रोज़गार पे भी डाका मार के आगे चले हैं, और 20,000 ऐसे ख़ानदान हैं जो एक नाजायज़ अदालती फ़ैसला की वजह से बिल्कुल आपके साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस हुकूमत के इस सेशन में एहतजाज करके अपना पॉइंट नोट भी करेंगे। ये जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है रीसेंट पास्ट में, क्या इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई थी? सर, ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जब भी हुकूमत में आते हैं वो रोज़गार दिलवाती है। तो पाकिस्तान में जिनको रोज़गार मिला है ज़्यादातर वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको रोज़गार दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा सियासी कारकुन है। जब आप नौकरी पेशा हो जाते हो, आपका सियासी ताल्लुक भी ख़त्म हो जाते हैं। और इन सारे लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है ये पहली बार नहीं, दूसरी दफ़ा हुआ है। पहली 90s के दौर में इनको रोज़गार से निकाला गया, तब वो 30 साल के थे। फिर उनको बहाल किया गया, एक बार फिर उनको नौकरी से निकाला गया, अब वो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कौन आदमी जो 50 साल का हो जाता है एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं? वो इस मुआशी बहरान में जब सब मान रहे हैं कि महंगाई इंतहा पे है, बेरोज़गारी गुर्बत तारीखी सतह पे है, इस किस्म का जुल्म करने का तुक क्या बनता? अगर हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर सकते थे तो इसी पार्लियामान ने उन 20,000 खानदानों को बहाल किया है। उनके हक़ रोज़गार पे, आपके हक़ रोज़गार पे हम ये हुकूमत को डाका मारना नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कुछ दिन पहले आपने नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग की थी। उसमें बहुत से जो सहाफ़ी हैं आपने उनकी बात सुनी थी जिन पर रिसेंट पास्ट में हमले हुए थे। उसमें असद तूर साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, उसमें अबसार आलम साहब भी आए, आसमा शराजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बात की। उस मीटिंग में आपको पुलिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सी एश्योरेंसेस करवाई गई थी। कुछ हमें उसके बारे में आप बताएं कि फॉलोअप उसका क्या है? सारे जो फॉलो अप हुए हैं, एक मज़ीद इंफॉर्मेशन कमेटी में भी मीटिंग हुआ है, हमारे सब कमेटीज़ में भी इंटरेक्शंस हुए हैं, और मैं इतना कह सकता हूँ कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। वो इसलिए कि जिनके खिलाफ
ये हमले हुए थे वो मुतमिन नहीं है। तो जब तक वो मुतमिन नहीं होंगे हम मुतमिन नहीं हो सकते हैं। हमने उस मीटिंग में और एक ख़त भी लिखा था एक इदारे को, और हमने अपना ख़त और अपना एतराज़ात वहाँ पहुँचाए थे। बिलावल साहब, जब आप पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, ये इस प्रपोज लॉ पर आप तनकीद करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो काउंटर क्रिटिसिज्म में ये कहते हैं जी कि सिंध में भी सहाफ़ियों के लिए हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पर भी बड़े हमले होते हैं, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई एक सूबा नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ सहाफ़त करना इस मुल्क में मुश्किल नहीं है। मैं सिंध के हद तक इतना कह सकता हूँ कि जो जुल्म होता है या होगा वहाँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़े हैं, वहाँ भी हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे बस की बात है उनकी मदद करने में, उनके साथ देने में हम करने को तैयार हैं। मगर हमें सब मिलके इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होता है इनको रोकना चाहिए। और सिंध में जो हमारा रीजनल सहाफ़ी हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका जो भी एक इंसिडेंट होता है वो मुल्क और कौम के सामने लेकर भी आते हैं। यहाँ पर आपके आने से पहले बात हुई थी, जो हमारे RIUJ के ये धरना एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं अफजल भट्ट साहब, वो हमें रिमाइंड करवा रहे थे कि 2007 में 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हमारे धरने में तशरीफ़ लाई थी। उसके बाद से मैंने देखा कि आप पिछले साल भी आप आए थे, हमारा इसी जगह पे धरने में आए थे, आज आप फिर आए हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशन है, आप क्या समझते हैं कि इस पर आप पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं ये आपसे ये सवाल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से कर रहा हूँ, आप मीडिया फ्रीडम और जो दीगर पाकिस्तान में इस वक्त लॉयर्स कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उस पर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहिद कर सकते हैं? आई थिंक कि जहाँ तक ये मीडिया की बात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही स्टांस है, और जहाँ तक दूसरे इश्यूज़ हैं, हमें सारे इश्यूज़ जो मुल्क और कौम के फ़ायदे में हैं उन पे जॉइंट ही प्रपोजल रखना चाहिए। और हमारा जो पार्लिमानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शहबाज शरीफ साहब है, और वक्तन फ़वक्तन वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं इशू टू इशू। शहबाज शरीफ साहब से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो सारी अपोजिशन जमातों के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात है। आपने क्या सुना? मैंने सुना है कि मौलाना फजल रहमान साहब से कुछ ताल्लुकात आपके पहले अच्छे थे, अब नहीं है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हम ना सिर्फ ये हमारा एक नस्ल का नहीं, मुसलसल हमारे बड़ों के साथ भी थे, और इंशाल्लाह और आने वाले नस्ल के साथ करेंगे। सियासत में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है मौलाना। अच्छा, आसमा शिराजी साहबा जो है वो भी कोई बात आपको सवाल करना चाहती है? बिल्कुल, वुमेन्स एम्पावरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकेंड, ये माइक को पकड़े था कि ये माइक दोनों साथ साथ होता कि जी सामने। थैंक यू। हेलो, अब आई बना कितना कम हुआ मेरा, अब हम लोगों को पता पे वो कह रही है आज टीवी का माइक रहने दे, पर बाकी भी दिखाना चाहिए। चलाएंगे ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर ये हेलो, एक मिनट आसमा क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं बाकी रात चैनल को चल रहे भाई, और नहीं, वो कह रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल क्योंकि किया हुआ है ना, आज का लोगो पीछे कर ले। हाँ ठीक है, मैं ठीक है, इंतजाम करती हूँ। अब ठीक है, चलो ठीक, ओके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त सहाफ़ियों के धरने से जो कि पार्लियामेंट के बाहर जारी है, वहाँ से मैं आपसे खत्म है और ये बहुत अहम मौका है कि जब हम यहाँ पे बैठे हैं उस कानून के हवाले से जो कि अभी तक प्रपोज्ड है और अभी तक अब वो नई पार्टी उसका मसवदा पेश करने की कोशिशें की जा रही हैं। वो काला कानून जो कि मीडिया की आज़ादी को और मीडिया के जो तमाम इस वक्त जो हमारा आज़ादी राय है उसको सल्ब करने की एक कोशिश होगी। यहाँ पे सारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, PF यूजेज़ हैं, RI यूजेज़ हैं, जितनी यूजेज़ हमारी सहाफ़ियों की मुंतखब यूजेज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो चुनतखब हैं और चुनतखब का ये दौर है, लेकिन हम मुंतखब की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के लिए बात की है, सहाफ़ियों की आवाज़ के लिए। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हम पाबंद थे, पाबंद सलासिल थे, जब हमारी बोलने पे पाबंदी थी, मोहतरमा यहीं आई थी और हम सबके साथ उन्होंने इस वक्त भी यकजहती की थी इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस सिलेक्टेड, क्योंकि इन्होंने सिलेक्टेड कहा था सबसे पहले, तो इस निज़ाम के बारे में उनकी अब क्या राय है, क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल साहब, मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हामिद मीर साहब भी, बाकी हमारे जितने सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी मौजूदगी में। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो काला कानून जिसके लिए हम सब एहतजाज कर रहे हैं, ये उस मंजिल की तरफ एक सफ़र है जो हुकूमत ने शुरू किया है, सिंगल पार्टी सिस्टम या मज़ीद आमरीत की तरफ, ये उसकी तरफ कदम है? मैं समझता हूँ कि ये एक नया कानून ज़रूर है, लेकिन ये इनका पहला कोशिश नहीं रहा है और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का, लेकिन वही मीडिया बाद में जाके उन आमिरों के उन जालिमों के अकीलीस हीर साबित हो चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से मुशर्रफ ने मीडिया के साथ जुल्म किया और फिर किस तरीके से उसी मीडिया पे उसके खिलाफ उसके आमरीत के खिलाफ मुहिम चलाया गया। जितना जुल्म ज़ियाउल हक करता था उतना बहादुरी के साथ पाकिस्तान का सहाफ़ी सच के साथ खड़ा रहता था। और ये एक नया काला कानून है। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते। हम समझते हैं कि अगर ये कानून बनता भी है तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों में इतना दम है, जिन्होंने माजी में मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये बिलावल साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर सहाफ़ी तो खड़े हैं हर दौर में, पाबंदियाँ सियासतदानों ने भी, सियासतदानों ने और जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने बर्दाश्त की है, लेकिन एक इल्ज़ाम अपोजिशन के सर पर भी इस वक्त जा रहा है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती, एक प्लेटफॉर्म पे होती, तो शायद ये जो सिस्टम इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है वो इतना आसान ना हो जाता जो कि इस वक्त है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस हुकूमत की लेजिटिमेसी की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में जमहूरियत की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में आपका आज़ादी की, मीडिया का आज़ादी की बात है, तो सब एक पेज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि कोई वजह नहीं है कि आपको या मुझे या पाकिस्तान का आम आदमी को, इस वज़ीर आज़म को एक और दिन भी वज़ीर आज़म बर्दाश्त करने। वो कैसे? इसलिए हमने इसी पार्लियामान के फ्लोर पे, जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान का मेजॉरिटी साबित करके वो वज़ीर आज़म बना, उसी फ्लोर से हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करके ये दिखा दिया है कि अदम एतमाद जो एक जमहूरी हथियार है, वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हम इस सिलेक्टेड का जो दौर है ख़त्म कर सकते हैं। और मेरा आज भी यही अपील है जो मैं उन दिनों में कहता था हमारे दोस्तों से कि इस मौक़िफ़ पे अगर हम सब मिल के आ जाएँ तो या हम इसको फ़ौरन घर भेज देंगे या इतना हिला के रख देंगे
کہ وہ اس قسم کی ظلم نہیں کر سکے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی نوابزادہ نصراللہ خان تو پیدا کرنا ہوگا جو کہ سر نوابزادہ نصراللہ خان کا بیٹا میرا ساتھ ہے, ادھر ہی کھڑا تھا, آپ کا احتجاج میں شامل ہیں, اور ہم نے بہت کی کوشش کی. اصولاً جو پی ٹی ایم کا ہیڈ ہوتا ہے ان کا یہ امپارشل ایسا کوئی رول ادا کرنا چاہیے, لیکن ہم نے وہاں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریٹن میں طے کیا, جو ہم نے ہر میٹنگ میں کہا, جو ہم نے ان سے الگ ہونے کے بعد بھی کہا, اب میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے جگہ جگہ پہنچ کے عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں. ہم اس سلیکٹڈ رول کو ختم کر کے ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے, ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پہ یقین رکھے, اور جو فیصلے عوام کے نمائندے کریں گے وہ عوام کے لیے, عوام کے مستقبل کو ضرور سوچ کے وہ فیصلے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت پہ شبخون مارنے کی ایک تیاری ہے جس کا پہلا نشانہ صحافی ہیں, کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے, یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے. یہ ہر وقت ایک کوشش ہے سارے وہ قوتوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں کے شہری آزاد ہو, یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے ووٹ دیں, یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے سوچیں, یہاں کی شہری اپنے آزاد طریقے سے بولے. ہمیشہ اس سچ کے خلاف, اس آزادی کے جو مخالف ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنا کوشش جاری رکھنا ہے. ہمیں اپنا جمہوری سپیس کسی کو سیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں میڈیا میں بھی وہ سپیس نہیں سیٹ کرنا چاہیے, اور سب سے زیادہ وہ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہیں, اگر پاکستان کے سیاستدان اپنا سپیس اس فلو پہ چھیننے شروع کر دے تو کوئی اور ہمارا سپیس میں مداخلت نہیں کر سکے گا. تو ہمارا یہ محنت ہوگا, ہمارا یہ کوشش ہوگا, ہمارا یہ جد و جہد ہوگا کہ جمہوریت کے لیے جو سپیس ہے, جو عوام کا سپیس ہے, وہ عوام کے پاس واپس کرا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بات کی ہم سے, اور اس بارے میں جی جی میں آپ لوگوں کا مائک کون سا, آپ لوگوں کا مائک کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے بڑا بہادری کے ساتھ ان کے جو بہت مہربانی, لوگ ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے. آپ سے ہمت ملتی رہتی ہے. جی صحیح کھائیں. آواز آپ کو صحیح آ رہی ہاں اس میں آواز ہے. تھوڑے اس طرح ہو گیا. میں تھوڑا جگہ بنانا تھا, ایسے سامنے دیکھتا. بالکل میں دیکھ رہا ہوں, سامنے دیکھ رہا ہوں, بالکل ایسے ہی بات کروں گا آگے جا کے. السلام علیکم جی. اس وقت ملک بھر سے صحافی جو ہیں اور ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں, جو فیک نہیں ہیں, جو جعلی نہیں ہیں, جو حقیقی صحافیوں کی حقیقی نمائندہ تنظیمیں ہیں, ملک بھر سے آئے ہوئے صحافیوں کے ساتھ یہاں پر پارلیمان ہاؤس کے سامنے اور پارلیمان کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کلمے کے سائے میں یہاں پر ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. آمریتوں کے زمانے میں بھی اسی طرح سڑکوں پر بیٹھ کے صحافیوں نے اپنے حقوق کی جد و جہد کی, اور آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے, جمہوریت کی حکومت ہے. سو بہت افسوس کی بات ہے کہ صحافی ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے انہیں عمران خان صاحب کی سرکار میں اسی پارلیمان سے چند گز کے فاصلے پہ وزیر اعظم ہاؤس ہے. یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب تک صحافیوں کی آواز پہنچ رہی ہوگی. یہاں پی ایم ڈی اے کے کالے قانون کے خلاف جو صحافی دھرنا دے کے بیٹھے ہیں کل سے, اس میں تشریف لائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. گفتگو انہوں نے پہلی بھی کی ہے, تھوڑے سے مزید سوال کرتے ہیں. سر میں ٹو دا پوائنٹ آپ سے پہلا سوال کروں گی. حکومت کہتی ہے, خاص طور پہ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو تقریر کی تھی یوم دفاع اور یوم شہداء پہ, وہاں پہ انہوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی تھی, اور ایک نئی نیریٹو جنگ کی بات کی تھی, اور ایک نئے سائبر وارفیئر کی بات کی تھی, اور کہا تھا کہ دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی موجود ریاست کے دشمن اس طرح سے نیریٹو بنا کے حملہ آور ہو رہے ہیں ریاست پہ, اس لیے پی ایم ڈی اے کا قانون بہت ضروری ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دو چیزیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا
हुकूमत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है और जो हमारे वज़ीर है, उनको हमारा फ़ौज को और हमारा फ़ौज की क़यादत को इस तरीके से कोट और कोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। और जो मेरा दूसरा इस पे मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पूरी दुनिया भर में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज़ वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरी के खिलाफ, या वो आज़ाद राय रखने वाले सहाफ़ी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, वो एक इम्पार्शल दिफा होगा जो मानने वाले होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान दे के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अब बहुत दफ़ा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत में जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फवक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी, लेकिन ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं, और इसी किस्म के बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप आवाम की सियासत करते हैं, आवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफ़ियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें आवाम की बात करते हैं, लेकिन हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। तो PMDA के काले कानून के ख़िलाफ़ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो सरकारी साहब, और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन? जहाँ तक ये हमारा सियासी फ़ायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं। हम तो हमेशा आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो, और आज़ाद मीडिया होगा तो हम सब का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फ़ायदा में होगा, किसी एक जमात का फ़ायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियाँ उठाए थे, तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके खिलाफ ही लिखते हैं, किसी और के खिलाफ लिखते ही नहीं है, आपने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का बरास है, और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल दे दें। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे, हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तनकीद भी बर्दाश्त कर सके। और आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेशन हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो
जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ातियात से ज़ाती हमले करते हैं, और अवाम का मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अभी आपने जो लोगों को निकाल दिए हैं उनके धरने में भी जाना है, तो जो कैमरामैन हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि अपने कैमरे जो हैं वो जो हमारे बेरोजगार साथी हैं जिनको बेरोजगार किया गया